Good evening, everyone. Good evening, Rubina. Good evening, sir. Good evening, How are you, Sakshi. sir? I'm perfectly fine. How are you doing? Fine, sir. Thank you, sir, for asking. Wonderful. All right. So I can see Sakshi is also there. Good evening, Sakshi. How are you doing? Good evening, sir. All is well. How do you do, sir? I'm doing perfectly fine. Thank you for asking. All right, great. Yes. So we'll get going now. So thank you, Rubina, for sending that list of tenses that we have seen this far. I think looking at that list, it shows that we have traveled the list of tenses in a concrete way and we have done them. So, any questions that you people have regarding tenses? Are we all through nicely, properly, intensively with all the tenses? Any doubts, Rubina, Sakshi, regarding tenses? Sir. Is everything clear to you? I think you need practice. Everyone needs practice. Is that so? Yes, sir. Okay. So, but we have done largely because I see your list and you have mentioned that we have worked on certain tenses that includes simple present tense, present continuous, present perfect. Then we have also worked on present perfect continuous. Then we have seen simple past. We have seen past continuous. We also saw past perfect and simple future. Right? These are the verbs, these are the tenses rather that we have seen. So I can see Arvaz. Good evening, Arvaz. How are you doing? Good evening, sir. I'm fine. Okay, And great. you? I'm perfectly fine. Thank you for asking. So I was just talking to our classmates, Arvaz, and I was telling them that we have seen tenses like we have seen simple present, we have seen present continuous, we have seen present perfect, and we have seen present perfect continuous. So we have completed all the parts of present tense. As far as past tense is concerned, we have seen simple past, we have seen past continuous, we have seen past perfect tense as well, which was I had gone, we had eaten, and in the end, we have seen simple future tense. Is that clear to all of you? Are we through with all these tenses? Yes? Right? Is that okay, everyone? You're comfortable with everything that I've said? Yes, sir. Okay, but that doesn't stop us over there, Rubina, Arvaz, Sakshi, Sarita, everyone, because tenses is something that we have to work every time on it, right? Do you have any questions related to tense? Was there any homework that I had given to you people? What was the homework that I had given to you people? List of the work, list of the translations. Yeah, it was the translation of. Sir, list which we did in the classroom, Yes. and the other portion had the Okay, so we had to translate the other sentences in English. Is that so? yes, yes. Okay, so I'll just quickly check with everyone. So, did you all do your homework? Everyone, did you translate those sentences in English? Yes or Sir. no? Yeah, sir. Sakshi says yes. What about others? Arvaz. Sir, I'm sorry, I didn't do the homework because I didn't read the Hindi. So that's why. Oh, all right, I got it. What about others? Deepti, good evening. How are you doing, Deepti? Good evening, sir. All well? Yes, sir. Great. I'm doing awesome. Oh, you're doing awesome. That's a beautiful answer. You're doing awesome. Is it because of the Yes, Mossam? ma'am. Because it's raining outside? Is it No, because? sir. No. It's raining नहीं है इधर. Okay, it's not raining over there at your place because at our place it's raining heavily. So that's the reason I asked you. All right. So I can see Manshi. Good evening, Manshi. How are you doing? Good evening, sir. I'm good. How Okay. are you, sir? I'm good too. Thank you. Okay, so quickly, I'll ask you people once again. Did you people complete your homework? Did you get time to translate those sentences from Hindi to English in the different tenses that we saw? बताइए समय मिला आप लोगों को अब अनम्यूट करके देखते हैं कौन बोलता है दैट्स गोइंग टू बी द राइट आंसर इफ समवन स्पीक्स बिकॉज Arvaz, Deepti, you're not unmuting yourself. That gives me a message. What is the message?
ओके चलिए, सो एक काम करें हम लोग, अभी हाथों हाथ आपसे पूछे सेंटेंसेस हिंदी में आप ट्रांसलेट करोगे इंग्लिश में मेरे लिए? Yes, yes. ये करते हैं, चलिए फटाफट करते हैं। तो अभी एक बार फटाफट से मैं आपको बताता हूँ हमने कौन कौन से टेंसेस देख लिए हैं। सो मैं इसको थोड़ा सा, चलिए इसको मैं एक बार ऊपर कर देता हूँ। अच्छा, फ्यूचर टेंस सही से नहीं हुआ है, अभी उसको सही से कर लेते हैं। एक काम करते हैं। Your voice is so low. Cannot. अच्छा, इज माय वॉइस लो एवरीवन? इज इट वेरी, Yes, yes, yes. इज दैट ओके Is रुबिना? it fine? अभी ठीक है? Yes, yes, नहीं, आपको सही सुनाई दे रहा है मानसी, साक्षी, दीप्ति? yes, sir. रुबिना, आप आपकी तरफ से थोड़ा वॉल्यूम फुल कीजिएगा, मे बी दैट वुड हेल्प यू। रुबिना, इज दैट ओके नाउ? आई थिंक शी गॉट डिस्कनेक्टेड। ऑलराइट, सो मैं एक बार फटाफट से रन थ्रू करवा देता हूं आपको। फर्स्ट, सिंपल प्रेजेंट। सेकेंड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। फोर्थ, फिर हमने देखा था चलिए एक बार यहां तक देख लेते हैं। हमारे पास ये सारे टेंसेस हैं। एवरीवन, इफ इट्स विजिबल टू यू, रुबिना, एम आई ऑडिबल टू यू नाउ? आप मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं रुबिना? Yes, yes, yes. ओके, ठीक है। मे बी कई बार टेक्निकल ग्लिच होता है, इस वजह से आवाज साफ नहीं आती। आई थिंक इट्स बेटर नाउ। आई कैन क्विकली सी कृष्ण मन्यू। कृष्ण मन्यू, गुड इवनिंग, हाउ आर यू डूइंग? आई थिंक ही इज स्टिल कनेक्टिंग हिमसेल्फ। ऑलराइट, सो दीस आर द टेंसेस दैट वी हैव सीन। सब लोग बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा। आज आखिरी क्लास है टेंसेस की, इसके बाद हम सिर्फ इसको प्रैक्टिस करेंगे, इसको सीखेंगे नहीं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी लर्नड इट। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और सिंपल फ्यूचर। इतने ही हम सीखेंगे यहाँ पे, बिकॉज दैट वुड कवर लार्जली एवरीथिंग दैट वी विल हैव टू से इन दिस कोर्स। ओके, अब कैसे बनता है क्या? गुड इवनिंग कृष्ण मन्यू, हाउ आर यू डूइंग? I'm fine, sir. How are you, sir? I'm good too. Thank you so much. Okay, so Krishna Manu, right now we are revising and repeating and looking at the tenses for the final time, right? एक आखिरी बार सारे tenses को फटाफट 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 रन थ्रू करेंगे हम लोग। और आप लोग बहुत अलर्ट होके देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। आपसे ही जानना चाहूंगा मैं कौन से tenses हैं, sentences पूछूंगा आपसे, ठीक है? एक बार आखिरी मौका है हम सभी के लिए कि हम एक बार रिविजन कर लें। राइट दीप्ति, यू आर अप? ठीक है, चलिए। सो अपने नोट्स खोल के रखिएगा। और अरबाज, कुछ कहना है आपको आगे बढ़ने से पहले? Ready for this question? You're waiting for this question. Which question? Any question? अच्छा, any question. Okay, so you already raised your. पहले एक काम करते हैं अरबाज, हम लोग एक बार फटाफट से इसका बनने का तरीका समझ लेते हैं, कैसे बनता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। So everyone, मानसी, everyone, please pay attention. सरिता, कैसे बनता है सिंपल प्रेजेंट? I eat, you eat, he eats, she eats, it eats, we eat, they eat. याद है आप सभी को? राइट? ठीक है, याद है। इसी पे चर्चा कर रहा हूं अभी मैं, इस वाले पे, राइट? सो आई ईट, यू ईट, ही ईट। सो मैं ईट लिख लेता हूं, टू ईट, और हमारा वो हो जाएगा आई ईट, यू ईट। इसमें स्पेशल बात थी शी, ही और ईट के साथ ईट्स लगता था। याद है आप सभी को ईट्स? ठीक है, दिख रहा है आप सभी को स्क्रीन पे? ध्यान रखिएगा। अब एक और बात आपको याद होगी सभी को, इसके साथ एक हमने दीप्ति रूल सीखा था, हम डू लगा सकते हैं। आई डू ईट, यू डू ईट, राइट? पर ही, शी और इट के साथ क्या आता है दीप्ति? बताइए दीप्ति, ही, शी, इट के साथ डज। ही डज ईट, शी डज ईट और इट डज ईट, और अंत में वी डू ईट एंड दे डू ईट। याद है सभी को? रुबिना, डू के साथ? ओके, तो ही डज ईट लिख देता हूं आपके लिए। ओके, वो खाता नहीं है, अब नेगेटिव पे चले जाते हैं, तो हम क्या करते थे? ही, एनीवन? वो खाता नहीं है, वो खाता है। वेरी गुड, ही डज नॉट ईट,
he does not eat या he doesn't eat, दोनों ठीक हैं, right? He doesn't eat या he does not eat. He doesn't eat. He doesn't eat, he does not eat. ठीक है? ओके, एक और चीज याद करिए, अब से प्रश्न कैसे बनता था, बताइए, कौन बता सकता है? क्या वो गाती है? क्या वो गाती है? Does she sing? या Sing. यस यस, वेरी गुड. डज शी सिंग? डज शी सिंग? क्या वो गाती है? डज शी सिंग? क्या वो गाती है? डज शी सिंग? ओके, परफेक्ट. ये प्रश्न कैसे पूछेंगे? क्या वो अंग्रेजी नहीं बोलता क्या? क्या वो अंग्रेजी नहीं बोलता क्या? हाथ रेज करिए प्लीज, अनम्यूट मत कीजिएगा अपने आप को जब तक मैं ना कहूं. अरबाज बताइए. Don't you speak English? डोंट यू स्पीक इंग्लिश होता है क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो? डोंट यू स्पीक इंग्लिश. पर हमारा प्रश्न था अरबाज, क्या वो अंग्रेजी नहीं बोलता है क्या? क्या वो अंग्रेजी नहीं बोलता है क्या? हाँ बोलिए. डज डज या डजंट ही स्पीक्स? स्पीक या स्पीक्स? जल्दी बताइए. वेरी गुड. तो स्पीक आएगा. डजंट ही स्पीक इंग्लिश? डजंट ही स्पीक इंग्लिश? क्या वो अंग्रेजी नहीं बोलता है क्या? ठीक है, ये थी हमारी कहानी बहुत छोटी सी सिंपल प्रेजेंट की. तो अब फटाफट सवाल पूछता हूं, सुनिएगा. बताइए प्रियंका. नो नॉट दैट्स नॉट प्रियंका, दैट्स प्रांजल. प्रांजल, हाउ डज समवन से वो पढ़ती नहीं है? उसको इतना बोलते हैं पर वो पढ़ती नहीं है. He does not study. She does not study. She doesn't study. Okay. क्या वो तुम्हारे साथ खेलता है? प्रांजल बेटा आप बताओ, क्या वो तुम्हारे साथ खेलता है? Does he play with you? Very good. Does he play with you? Does he play with you? ठीक है, perfect. Does he play with you? Right. Does he play with you? With का और you का गैप है. Okay. दीप्ति आप बताइए. तुम अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हो? तुम इंग्लिश क्यों नहीं बोलते हो? Why are you speak in English? ओके, रिलैक्स, आराम से सोचिए. Why are you speak in English? बिल्कुल गड़बड़ गड़बड़ है. यहाँ पे आइए, सिंपल प्रेजेंट पे चल रहे हैं. दीप्ति, why? Yes, sir. Why तो सही पकड़ा आपने. तुम अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हो? Why? Why? Why you doesn't speak English? यहाँ दिया हुआ है हमारे को पूरा आंसर. Yes, sir. क्या है? पढ़िए दीप्ति. Why don't you speak? Why doesn't you speak English? दीप्ति, सामने आपको डोंट दिख रहा है तो आप डजंट क्यों पढ़ रहे हो? यू के साथ तो डोंट ही तो आता है. Visible नहीं था. अच्छा, Yes, sir, don't. विजिबल नहीं था पर दिमाग में तो आपके एकदम बैठ चुका है कि यू के साथ डोंट आता है, तो फिर आपने डजंट क्यों लगाया? दिखे नहीं दिखे कोई बात नहीं, दिमाग को दिखना चाहिए. ठीक है, चलिए. सो आपका क्या प्रश्न हुआ दीप्ति, जब आप किसी से पूछते हो तुम अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हो? बताइए क्या प्रश्न है? Question. हाँ, वापस से बोलिए इस प्रश्न. Why don't you speak English? एग्जैक्टली, व्हाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश? इतने मौके पड़ते हैं, इतने लोगों से घिरे रहते हो, इतना तुम्हारे को चांस मिलता है, इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, व्हाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश? ओके, चलिए सरिता बताइए, वो गाना क्यों नहीं गाती है? वो गाना क्यों नहीं गाती? इतनी अच्छी उसकी आवाज है, इतना बढ़िया उसका सुर लगता है, वो गाना क्यों नहीं गाती है? सरिता. या सरिता. Why doesn't she sing? Very good. Yes, sir. Perfect. Why does not she sing? Why doesn't she sing? Why doesn't she sing? Why doesn't she sing? Right? Why doesn't she? और he का she कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे speak की जगह sing कर देते हैं. Right? So why doesn't she sing? Why doesn't she sing? Clear है सभी को? समझ में आ रहा है सभी को? साक्षी, अरबाज. Yes, sir. तो ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट. किसी को कोई डाउट तो नहीं है? रुबिना, कृष्णमन्यु आप बताइए एक. कृष्णमन्यु, ओके. वो स्कूल नहीं जाता है. वो स्कूल नहीं जाता है.
Sir, if that, बोलिए, वो स्कूल नहीं जाता है, कैसे बोलेंगे? sir, he doesn't हाँ, he doesn't going to school. क्या बोलेंगे बेटा? he doesn't He doesn't going to school. ये going क्यों लगा? हाँ, क्या आएगा एवरीवन? Go. हाँ He doesn't go to school. हाँ एग्जैक्टली, he doesn't go to school. देखिए, हाँ बेटा, गोइंग नहीं आएगा. गोइंग हमेशा कब आएगा? सब लोग कान खोल के सुन लीजिए. गोइंग आएगा जब, हाँ, Continue. वेरी गुड, जहां कंटिन्यूअस दिखे वहां पे आईएनजी आएगा, उसके अलावा आएगा ही नहीं. सभी को समझ में आ रहा है? आईएनजी ध्यान रखिएगा, ठीक है? ही डजंट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता. देखिए, आपके सारे मित्रों ने अनम्यूट करके फटाफट कहा गो गो गो, क्योंकि उनको लग गया कि कुछ गड़बड़ है. राइट, चलिए. सो सिंपल प्रेजेंट क्लियर है सभी को? कोई डाउट तो नहीं है सिंपल प्रेजेंट में? इज दैट ओके No, sir. एवरीवन? Yeah. राइट, चलिए. सो मैं काम करूंगा, मैं इसको, मुझे व्हाइट वाले एरिया को मिटाना पड़ेगा सो दैट आई कैन वर्क ऑन इट. आप वीडियो में देख लीजिएगा इसको वापस से, वीडियो में अपने नोट्स बना लीजिएगा, राइट? बिकॉज आई हैव टू रिमूव दिस, आई वोंट बी एबल टू डू इट ऑन द अदर पेज. ओके, सो right, so that's okay for you. I'll just quickly remove everything and then we'll move ahead. I'll try to erase this portion. Okay, so मैं एक बार थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ. What? I'll have to do this way. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हमारा नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस. किस किस को याद है प्रेजेंट कंटिन्यूअस? बताइए. चलिए साक्षी, आप सुनाइए कैसे बनता है फटाफट से प्रेजेंट कंटिन्यूअस. Yes, sir. बताइए. I'm writing an email. I am writing an email. वेरी गुड. क्या मतलब होता है इसका साक्षी हिंदी में? मैं एक ईमेल लिख रहा हूँ. हाँ, वेरी गुड. मैं एक ईमेल लिख रहा हूँ, लिख रही हूँ, बिल्कुल ठीक है. तो आपने सही बताया कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है उसके अंदर इज, एम और आर को यूज करते हैं हम. इज एम आर को, और क्या करते हैं हम? प्लस आईएनजी फॉर्म लगाते हैं. इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म, ठीक है? और अगर इसका नेगेटिव बनाते हैं दीप्ति, तो नॉट. सर, ये इसको इज नॉट भी बोलते हैं. एम नॉट तो एम नॉट ही रहता है, और ये आर नॉट भी हो जाता है, और प्लस आईएनजी. और प्रश्न यदि बनाना हो तो एम आई समथिंग समथिंग, इज ही समथिंग समथिंग, एंड आर वी या दे या यू, एंड देन समथिंग समथिंग. देखिए, अब देख लीजिए स्क्रीन पे अच्छे से. इज, एम, आर और आईएनजी फॉर्म. चलिए सुनते हैं. अरबाज आप बताओ. मैं गाना गा रहा हूं. I am singing a song. एग्जैक्टली. दीप्ति आप बताइए. तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? तुम खाना क्यों तुम खाना क्यों Why नहीं? are you हाँ, वेरी गुड. व्हाई आर यू not eating? वेरी गुड. व्हाई आर यू नॉट ईटिंग? व्हाई आर यू नॉट ईटिंग? तुम खा क्यों नहीं रही हो? तुम क्यों नहीं खा रही हो? व्हाई आर यू नॉट ईटिंग? परफेक्ट. ओके, तो यहाँ पे भी देखिए आईएनजी लगाया आपने. ये कौन सा टेंस है दीप्ति? ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस. ठीक, Continuous. आर है और आईएनजी और यू के साथ. यू आर नॉट ईटिंग. व्हाई आर यू नॉट ईटिंग? परफेक्ट. चलिए और देख लेते हैं हम. प्रांजल आप बताओ. आप बोलिए कि वो टीवी क्यों नहीं देख रहा है? वो टीवी क्यों नहीं देख रहा है? प्रांजल, वो टीवी क्यों नहीं देख रहा है? Why is he not watching TV? Wonderful. Why is he not watching TV? Why is he not watching TV? Very good. Why is he not watching TV? वो टीवी क्यों नहीं देख रहा है? Why isn't he watching TV? या why is he not watching TV? Right? क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलिए अब थोड़े से और टेंस प्रश्न बना लेते हैं, सेंटेंस बना लेते हैं. Sir, why
Why he is not watching भी बोल सकते हैं, is बाद में रखा सकते हैं। तो आप बताइए, आपने क्यों कहा था फिर? आपने सही क्यों किया ये वाली चीज? आपने तो बताया था दीप्ति, व्हाई आर यू नॉट ईटिंग, बिकॉज ये सही तरीका है बोलने का। हालांकि उसको गलत नहीं मानेंगे, लेकिन वो एक्चुअली क्या वाक्य होता है, यू आर नॉट ईटिंग को हम ये नहीं बोलेंगे व्हाई यू आर नॉट ईटिंग, व्हाई यू आर नॉट ईटिंग, व्हाई आर यू नॉट ईटिंग, दैट्स अ बेटर वे, बिकॉज व्हेनेवर यू पुट द क्वेश्चन वर्ड इन द फर्स्ट प्लेस यू वुड डू द इन्वर्जन, दैट्स हाउ इट गोस, राइट? सो इन्वर्जन हो जाता है इसमें, थोड़ा सा परिवर्तन। तो व्हाई आर यू नॉट ईटिंग, व्हाई इज ही नॉट वॉचिंग टेलीविजन, ये एक तरीका है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो गलत है दीप्ति, बट थोड़ा सा उसको अवॉइड करिएगा, बिकॉज वो वोकल है, वो बोलने का काम होता है उसमें ज्यादा। बट जब आप लिखेंगे और सही तरीके से बोलेंगे भी तो यही बोलेंगे, ना कि व्हाई यू आर नॉट ईटिंग, राइट? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रुबिन आप बताइए, हम गाना नहीं गा रहे हैं। हम गाना नहीं गा रहे हैं, हाँ, we हम वी, we are not singing a song. हाँ, वी आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, एग्जैक्टली, परफेक्ट। ओके, मुझे लगता है बड़ा आसान है, आईएनजी वाला तो आप सबको बहुत एकदम इजी लगता है मेरे हिसाब से। चलिए आगे देख लेते हैं फटाफट से। कृष्णमन्यु, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा हूं? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा हूं? मतलब हुआ क्या कि आपको पहले किसी ने कहा कि अच्छा अच्छा अपन सब साथ चलेंगे, और वो लोग जब जाने लगे तो आपको भूल गए, तो आपने कहा अरे क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा हूं? कैसे बोलेंगे? एनीवन हु वुड लाइक टू ट्राई? कृष्णमन्यु आपसे पूछूंगा सबसे अंत में, ठीक है? तब तक ट्राई करके रखिएगा। मानसी आप बताइए, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही हूं? Am I not? हाँ बताइए मानसी, एम आई नॉट Am I not going with you? Very good. Am I not going, G-O-I-N-G, going with you? Perfect. Am I not going with you? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही हूं? तो इसका जवाब दीजिए आप दीप्ति। नहीं, तुम मेरे साथ नहीं जा रही हो। No, you are not going to me. तो विद का तो विद ही रहेगा ना दीप्ति, आप टू क्यों कर रहे हैं इसको? विद मी, मेरे साथ, साथ तो विद होता है ना दीप्ति? Yes, sir. तो क्या बोलेंगे? वापस बोलिए, नहीं तुम मेरे साथ नहीं जा रही हो। बताइए दीप्ति। No, हाँ, you are not हम्म, with me. You are not going with me. एग्जैक्टली, नो यू आर नॉट गोइंग विद मी, तुम मेरे साथ नहीं जा रही हो, राइट? कृष्णमन्यु, ये नहीं, ऐसा नहीं होता। No, you are not coming with me. हाँ, तुम मेरे साथ नहीं आ रही हो, तुम मेरे साथ नहीं जा रही हो। सो आना जाना, देखिए फर्क है थोड़ा सा। जानना होता है कि तुम मेरे साथ नहीं जा रही हो, हम दोनों मिलके वहां जा रहे हैं, राइट? और तुम मेरे साथ नहीं आ रही हो का मतलब ये है कि देखिए फर्क क्या है इसके अंदर रुबिना, थोड़ा सा फर्क है। तुम मेरे साथ वहां नहीं जा रही हो, यू आर नॉट गोइंग अलोंग विद मी, यू आर नॉट गोइंग विद मी, यानी हम जहां जा रहे हैं ना, हम लोग पार्टी में जा रहे हैं, वहां पे तुम मेरे साथ नहीं जा रही हो। लेकिन यू आर नॉट कमिंग विद मी का मतलब यह है कि तुम अभी मेरे साथ नहीं आ रही हो, यानी इसका सेंस है कि आने में हम ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं कि मैं तुम्हें साथ लेके जाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, वहां नहीं, मेरे साथ। तो जब आप कहते हैं ना कमिंग, यू आर नॉट कमिंग विद मी के अंदर ये फील आता है रुबिना कि तुम मेरे पास आके फिर हम जाएंगे, वो एक्शन नहीं होगा, और वहां सिर्फ सीधे जाने के एक्शन पे हम फोकस कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आपकी बात सही है कि सर मतलब तो मोटा मोटा सेम है, मोटा मोटा सेम है, पर एक सटल डिफरेंस है। सटल डिफरेंस है, वहां जाने की बात है तो गोइंग, नो यू आर नॉट गोइंग विद मी ओवर देयर, तुम मेरे साथ वहां नहीं जा रही हो। और यू आर नॉट कमिंग विद मी ओवर देयर, तुम मेरे साथ वहां नहीं आ रही हो, यानी तुम मेरे साथ नहीं आ रही हो, उसमें मेरे साथ आने पे ज्यादा फोकस है। बस थोड़ा सा फोकस का फर्क होता है ना, थोड़ा सा सटल सा डिफरेंस है। चलिए चलिए कृष्ण ने बताइए क्या रहा बेटा आपका सेंटेंस, जब हमने कहा कि क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा हूं? कृष्णमन्यु अनम्यूट करके बताइए फटाफट से। Yeah, Deepti, you want to say something? You want to try? No, sir, मैं आंसर देना हाँ चाहूँगी। बताइए 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 प्लीज। I am not going with you. अब प्रश्न है ये, या बात नहीं बता रहे हो किसी को? आई एम नॉट गोइंग विद यू, ये बात नहीं बता रहे हो, आप प्रश्न पूछ रहे हो। तो प्रश्न पूछोगे तो क्या करोगे आप दीप्ति?
Am I? हाँ बोलिए. Am I not going with you? हाँ, am I not going with you? तुमने Am I not हम्म, going with you? absolutely. Am I not going with you? मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही हूँ क्या? तुमने सुबह तो बोला था अपन साथ चलेंगे और अब तुम अकेले जा रहे हो या जा रही हो और तुमने मुझे कहा था अपन साथ चलेंगे. Am I not going with you? Am I not coming along with you? दोनों ही ठीक है, जो रुबिना ने कहा वो भी ठीक है. चलिए बताइए, यहां तक सभी को समझ में आ गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस एवरीवन. अरबाज, Sir. प्रांजल, Yes, sir. सभी को ठीक है? साक्षी, सरिता, पूछ लीजिए कोई भी डाउट हो तो आपको. चलिए, तो ये हुआ हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस. इसमें हम कभी भी डू डज नहीं लगाते हैं, ध्यान रखिएगा. डू डज नहीं आता, न नेगेटिव में आता है न ही प्रश्न बनाने में आता है. इसमें प्रश्न बनता है हमारे इज एम आर से, या फिर कोई और क्वेश्चन वर्ड आ सकता है, व्हाई, एट व्हाट टाइम, विद हुम, हाउ, वो सब आ जाएगा. राइट. एक हाउ के साथ बनाते हैं कैसे. हाउ जो शब्द होता है ना, दैट इज कैसे. राइट. ओके. तुम कैसे जा रहे हो? आपने पूछा रुबिना, आपकी फ्रेंड जा रही थी, तो यू थॉट इट्स टू लेट, हैज शी बुक्ड अ कैब और शी इज गोइंग बाय द बस और वुड समवन कम टू पिक हर अप, सो यू आस्क्ड हर, तुम कैसे जा रही हो? तुम कैसे जा रहे हो? How are you going there? या हाउ आर यू गोइंग देयर. वेरी गुड. हाउ आर यू गोइंग देयर, तुम वहां कैसे जा रही हो. परफेक्ट. क्लियर है सभी को? हाउ आर यू गोइंग देयर. वही चीज है दीप्ति जो आपने बताई थी कि हम जब यहाँ पे पहला क्वेश्चन वर्ड हाउ लगा देते हैं तो हाउ आर यू के साथ हम बनाएंगे हाउ आर यू गोइंग देयर. ठीक है एवरीवन, इज दैट ओके? Yes, sir. या साक्षी आप ट्राई कीजिए. वो इन दिनों कैसे कर रहा है, मतलब उसके वो स्कूल में कैसा कर रहा है. आपने अपने छोटे कजिन के बारे में पूछा उसकी टीचर से, वो स्कूल में कैसा कर रहा है इन दिनों. ट्राई कर सकते हैं साक्षी. वो इन दिनों कैसा कर रहा है, कैसा कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है. एनीवन? अरबाज, एनीवन हाथ रेज करके बता सकते हैं वो इन दिनों कैसा कर रहा है स्कूल में. चलिए अरबाज आप ट्राई कीजिए. How is he doing in the school this time? हाँ बस टाइम का वर्ड गड़बड़ हो गया, बाकी सब ठीक था. हाउ इज ही डूइंग इन स्कूल या इन द स्कूल दीज दिनों, डेज. Days. परफेक्ट. परफेक्ट. राइट. सो सही उत्तर है आपका. हाउ इज ही डूइंग, हाउ इज ही डूइंग in school these days. THESE these and DAYS days. How is he doing in school these days? वो इन दिनों कैसा कर रहा है स्कूल में. पता था कि पहले तो उसका अच्छा नहीं था परफॉर्मेंस, अब मैडम ध्यान भी देती है उस पर, वो मेहनत भी करता है, उसकी ट्यूशन भी लगा दी हमने, तो अब वो कैसे कर रहा है. हाउ इज ही डूइंग इन स्कूल दीज डेज. क्लियर है? मानसी कुछ कहना है आपको? Yes, sir. बताइए. Sir, nowadays कहाँ पे यूज करते हैं? Oh, how is he doing in school these days? हाँ, these days इन दिनों, nowadays आजकल, nowadays आजकल. Okay, Right? sir. Nowadays, 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 right? हमारे पास ऑप्शन, हम जब कई बार बात बताते हैं ना, इन दिनों आजकल ये हो रहा है, इन दिनों ये हो रहा है, तो हम उसको इस हिसाब से बोल सकते हैं. these days भी बोल सकते हैं, अन्यथा जो मैंने आपको बताया nowadays. और जो nowadays है वो एक शब्द है अपने आप में, NOWADAYS, now Yes, sir. days, right? Nowadays, NOWADAYS, nowadays. ठीक है. इस वीडियो को अच्छे से आप देख लीजिएगा, बिकॉज मुझे व्हाइट वाला पोर्शन हटाना पड़ेगा और आप वीडियो में इसको फिर से नोट कर लीजिएगा. चलिए, यहां तक क्लियर है सभी को? प्रेजेंट कंटिन्यूअस एवरीवन? यस, राइट. Yes, sir. अब आज की Yes, sir. क्लास बहुत आवश्यक है, क्योंकि अब अगली क्लास से मैं एक नया कॉन्सेप्ट जो मैंने बहुत पहले से सोचा था वो चालू करूंगा. वो है स्पीकिंग के ऊपर. हम टॉपिक्स अब हर क्लास में लेंगे और उस पर चर्चा करेंगे, और मैं चाहूंगा कि आप इन सभी कंस्ट्रक्शंस को काम में लेते हुए अपने बोलने पे ध्यान दें और स्पोकन पार्ट को अपना और स्ट्रॉन्ग करें. बिकॉज मुझे पता है संडे इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज में कई बार आप लोगों के लिए आना मुश्किल होता है. कई लोग आते हैं. आई एम रियली हैप्पी एंड थैंकफुल दैट यू पीपल जॉइंड इन yesterday, but everyone cannot make it, I understand. So in such a situation, what we will do is that every time in our class, in the end, not absolutely towards the end, but somewhere in the midpoint of our class, we'll start a discussion largely, और हम उसमें सब बात करेंगे. उसका मैं आपको टॉपिक आज ही दूंगा,
जो कल हम चर्चा करेंगे। तो कल का टॉपिक मैं अभी बता रहा हूं आपको, कल हम बात करेंगे व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू लर्न इंग्लिश, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू लर्न इंग्लिश। इसमें हम डिबेट करेंगे, चर्चा करेंगे, बोलेंगे, अपने पॉइंट्स रखेंगे, अपनी बात रखेंगे, हम एक दूसरे को काटेंगे नहीं, पर मुझे लगता है ऐसा नहीं है, मुझे लगता है वैसा है। ये सारी बातें हम करेंगे कल से हमारे सेशंस में फॉर लेट्स से हाफ एन आवर टू 35 मिनट्स टू 40 मिनट्स टू 50 मिनट्स तक जा सकता है। ये एक ग्रामर टॉपिक करवाऊंगा आपको शुरुआत में हमेशा, और फिर हम चर्चा करेंगे कोई भी टॉपिक पे। तो हर दिन एक नया टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, और उस टॉपिक से संबंधित मैं आपको वोकैबुलरी और एक्सप्रेशंस प्रयास करूंगा एक दिन पहले, अन्यथा उस दिन सुबह जल्दी आपको दे दिया करूंगा, ताकि आप दिन भर में प्रयास करूंगा कि उसके एक दिन पहले ही दे दूं, यानी आज ही दे दूंगा मैं आपको कल के टॉपिक के काफी सारे पॉइंट्स, जिसमें मैं वोकैबुलरी दूंगा आपको और एक्सप्रेशंस दूंगा, पॉजिटिव पॉइंट्स, प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, कभी कोई टॉपिक के होंगे तो वो भी दूंगा। वो आप पढ़ेंगे और अपने टॉपिक को स्ट्रेंथन करेंगे, फिर आप उस पर चर्चा करेंगे। इज दैट ओके एवरीवन? क्योंकि अब बहुत आपने अपने नोट्स बना लिए हैं, बहुत लिखाई पढ़ाई कर ली, अब बोलने का समय आ चुका है, राइट? ताकि आप बहुत बेझिझक होकर बोलें और हर टॉपिक पे आप चर्चा कर सकें। एवरीवन विल हैव टू स्पीक, हर एक को बोलना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। कोई नहीं इसमें फ्री होगा कि नहीं सर मैं नहीं बोलूंगी या मैं नहीं बोलूंगा, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। और मैं चाहूंगा कि आप उस समय अपना कैमरा भी ऑन करें, ताकि मैं आपके एक्सप्रेशंस देखूं कि आप बोलते समय किस प्रकार से बोलते हैं, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बड़े कॉन्फिडेंट स्पीकर बने, आपके जो चेहरे के एक्सप्रेशंस हैं वो काफी कंट्रोल्ड हों, आप एंग्शियस नहीं हों। तो ये सारी चीजें हमें धीरे धीरे सीखनी पड़ेगी, बिकॉज ऐसा तो नहीं कि हम पूरे लाइफ में ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर बातें करेंगे, हमको ऑफलाइन में बातें करनी है। तो वी शुड नो हाउ वी हैव टू कंपोज आवरसेल्व्स, हाउ वी हैव टू स्पीक, हाउ वी हैव टू यूज आवर फेशियल फीचर्स, इन सब चीजों का हमें प्रयोग करना पड़ेगा, राइट? तो ये धीरे धीरे सीखेंगे, इसलिए प्रयास कीजिएगा कि आप अपने आप को न केवल अनम्यूट करें, बल्कि आप कैमरा भी ऑन करें जब आप बोलें कल की क्लास में। ऑलराइट, okay, so I hope it is clear to everyone, present continuous, is that okay everyone? Yes? चलिए, great, let's quickly move ahead towards present perfect। ये मैं पूछूंगा प्रांजल से। प्रांजल आप हमें हेल्प कीजिए, बताइए क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट और कैसे बनता है, फटाफट से। तब तक मैं इसको रिमूव करता हूं, इन वाइट वाले जो पॉइंट्स को। Yeah, Pranjal, would you be able to help us with this one? Pranjal, do you remember this one? Oh, that's easier for me to remove. Yeah, Pranjal, can you hear me? No, Pranjal? बताइए हाँ ना कुछ तो बोलिए, say something, say yes, say no, say something. You remember Pranjal, this one? Am I audible to everyone? Oh, come on, you have to respond. How would I get to know otherwise if I'm audible or not? So let's move ahead. I think Pranjal got a technical glitch. प्रेजेंट परफेक्ट मींस क्रिया खत्म हो चुकी है, मतलब मैं खा चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ। बिल्कुल वंडरफुल, मैं जा चुका हूं, मैं खा चुका हूं, हम देख चुके हैं, हम समझ चुके हैं, हूं, ये जो है और हूं का फिनिश है, वर्क फिनिश हो चुका वर्क फिनिश हो चुका है। दीप्ति, पर आप ध्यान रखिएगा कि इसका असर वर्तमान तक आता है। आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, क्योंकि जब हम सिंपल पास देखेंगे ना तो उसमें भी काम खत्म हो चुका था, लेकिन वो थोड़ा पीछे था। उदाहरण के लिए, मैं गया, उन्होंने देखा, हमने कल एक फिल्म देखी, हमने कल आइसक्रीम खाई, हमने कल समोसा खाया। लेकिन आप जब वर्तमान में आएंगे तो उसका सेंस कैसे होगा दीप्ति? मैं अपना काम खत्म कर चुका हूं। ठीक है, समझ आ रहा है आपको मैं जो कहना चाह रहा हूं? तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये क्यों फर्क रखता है सिंपल पास्ट से, आप वरना कंफ्यूज हो जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट के अंदर। चलिए, तो दीप्ति आप ही बताइए कि बनता कैसे है ये प्रेजेंट परफेक्ट, कैसे बनता है दीप्ति? याद है? सर इसमें वर्क की थर्ड फॉर्म। वेरी गुड, जहां पे भी परफेक्ट हो जाए सभी लोग ध्यान दीजिएगा, परफेक्ट का मतलब ही है थर्ड फॉर्म। वेरी गुड, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और कंटिन्यूस वाला आईएनजी फॉर्म आपका दिमाग में बैठ गया सभी के, आईएनजी आईएनजी। बताइए, तो थर्ड फॉर्म किसके साथ लगाते थे दीप्ति? हम सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते थे? हैव या हैज, और थर्ड फॉर्म। याद आ गया आपको? ठीक है, ये तरीका बनता था। तो दीप्ति आप बताइए, मैंने खा लिया है, मैंने खा लिया है, कैसे बोलोगे दीप्ति? आई हैव ईटन। वेरी गुड, आई हैव ईटन, मैंने खा लिया है।
दीप्ति आप ही बताइए, मैंने नहीं खाया है। I don't eat it. अब ये डोंट क्यों I लगाया have आपने? don't eat it. Sir, आपको सिर्फ नॉट लगाना है दीप्ति, सिर्फ नॉट। yes sir. हाँ तो बताइए कैसे बोलेंगे? I have not eaten. वेरी गुड, आई हैव नॉट ईटन, जिसको हम आई हैवंट ईटन भी बोल सकते हैं। याद है आपको दीप्ति? ठीक है। Yes sir. अब प्रश्न बनाइए दीप्ति, क्या मैंने खा लिया है? अब मुझे लगा कि वो तो सिर्फ स्नैक्स थे। अच्छा वो डिनर ही था क्या? अच्छा वो खा लिया है हमने तो? Have you eaten? ठीक है, आप किसी और से पूछ रहे हो। हैव यू ईटन, तुमने खा लिया है, ये अच्छा है। हैव यू ईटन, परफेक्ट, ठीक है। और तुमने खाया नहीं है? दीप्ति इसको बताइए, तुमने खाया नहीं है? Have you not eaten? या हैव यू नॉट ईटन, या फिर एनीवन? हैवंट यू अरबाज? Eaten. हाँ, एट भेजा आपने पहले तो शब्द, ईटन। हैवंट यू ईटन अरबाज? दोपहर के खाने के लिए पूछ रहा हूँ। ईटन, दैट्स करेक्ट। अरबाज, आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन। अरबाज, हैवंट यू ईटन? Yes, I have eaten. या, यस आई हैव ईटन, यस आई हैव ईटन। ओके चलिए फटाफट से कुछ। Sir, या दीप्ति बताइए। sir, don't और not में meaning तो same होता है. नहीं नहीं Don't और not. होता है सेम, लेकिन उसका यूजेज अलग अलग तरीके से होता है। आप यहाँ पे नॉट ही लेंगे, डोंट नहीं लेंगे आप। अब सुनिए दीप्ति, सुनिए, जो डोंट है वो किस शब्द से मिलके बनता है? डू और नॉट से। डू और नॉट से याद आ रहा है आपको? डू और नॉट याद आता है आपको? और डू की जो डू कहाँ पे काम में लिया जाता था आपको याद है दीप्ति? सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में, बस। और कहीं काम में नहीं लिया जाएगा। अगर होगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन मेरे दिमाग में से अभी सिंपल प्रेजेंट आ रहा है, वही लेते हैं हम। आई रीड, आई डू रीड, आई डोंट रीड, डू आई रीड, वहीं पे डू था। तो आपको वहां पे डोंट बोलना ही नहीं है, आपको तो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ नॉट लगाना है। ठीक है, चलिए फटाफट से देख लेते हैं। साक्षी आप बताइए, उन्हें समझ नहीं आया है। उन्हें समझ नहीं आया है। सर क्वेश्चन है क्या? हाँ क्वेश्चन है, मतलब आपको ये वाक्य है, उसको आपको बताना है। उन्हें समझ नहीं आया है, उन्हें समझ नहीं आया है। बताइए, उन्हें समझ नहीं आया है। They have understood. हाँ काफी हद तक सही किया, पर हमने तो नेगेटिव में बोला था ना, उन्हें समझ हाँ। नहीं आया है। नेगेटिव बताइए साक्षी। दे, क्या बोलेंगे साक्षी? दे They haven't. दे They हैवंट। haven't आगे थर्ड फॉर्म क्या लगाया आपने? understood. वेरी गुड, दे हैवंट अंडरस्टूड। मैंने उनको इतना समझाया बट दे हैवंट अंडरस्टूड, उनको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब उनको नहीं समझ में आया, उनको समझ में नहीं आया। ठीक है, ओके। यही प्रश्न हमें पूछना था सरिता, क्या उसे समझ नहीं आया है? क्या उसे समझ नहीं आया है उस गर्ल को? उस गर्ल की बात करें सरिता, क्या उसे समझ नहीं आया है? Has he not understood? वेरी गुड, हैज ही नॉट अंडरस्टूड, हैज ही नॉट अंडरस्टूड, वेरी गुड। इसको एक और क्या तरीके से बोल सकते हैं हम? ओ या सॉरी, शी होगा यार, राइट। ही शी दोनों ठीक है, अगर आपको कॉन्टेक्स्ट क्लियर है कि भाई बॉय से पूछा है गर्ल से पूछा। चलिए आप बताइए, हैज शी नॉट अंडरस्टूड का एक और क्या तरीका हो सकता है रुबिना? या हैजंट, hasn't she understood, perfect। hasn't she understood, उसको अभी तक समझ में नहीं। hasn't she understood yet लगाते हैं, अभी तक नहीं आया। yet, yet मतलब अभी तक नहीं आया, राइट? yet। चलिए ओके आपको एक क्वेश्चन बनाना है। उन्होंने ये कैसे बनाया है? लेट मी आस्क, whom should I ask? प्रांजल, उन्होंने ये कैसे बनाया है?
How they have made this? ओके बहुत अच्छा बताया है, थोड़ा सा चेंज किया, हाउ हैव दे मेड दिस, वेरी गुड। आपने क्या किया इसमें प्रांजल, आपने ये किया कि आपने हाउ दे हैव मेड दिस बोला, और याद कीजिए जो दीप्ति जी के साथ हमने डिस्कस किया था कि जब फर्स्ट प्लेस पे हमारा क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा तो हम इन्वर्जन कर देंगे, ठीक है प्रांजल। तो हाउ हैव दे मेड दिस, हाउ हैव दे मेड दिस, ठीक है। व्हाट डज दैट मीन प्रांजल इन हिंदी, हाउ हैव दे मेड दिस? उन्होंने ये कैसे बनाया? वेरी गुड, उन्होंने ये कैसे बनाया है। और ये जो मेड है किसका थर्ड फॉर्म है, एनीवन? make कर, मेक का थर्ड फॉर्म है, वेरी गुड Make, अरबाज। make. मेक, टू मेक, बनाना जो होता है करने की क्रिया, उसका थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट। हाउ हैव दे मेड दिस, ओके। फटाफट से एक दो और सेंटेंसेस में चेक कर लेता हूं। कृष्णमन्यु आप बताइए, आपको बताना है क्या हमने अभी तक बुक नहीं दी है, क्या हमने अभी तक बुक नहीं दी है। सब लोग सोचिए, क्या हमने अभी तक, अभी तक हो जाएगा येट, अभी तक के लिए होगा येट, YET, येट, येट अभी तक। और बुक, क्या हमने अभी तक बुक नहीं दी है, मतलब हुआ क्या, आप लोग लाइब्रेरी से बुक इश्यू करवा के लेके आए थे और आप भूल गए, और आप दोस्तों ने कहा ओफो हमने क्या अभी तक बुक ही नहीं लौटाई है, हमने क्या अभी तक बुक नहीं दी है। तो टू गिव भी ले सकते हैं और रिटर्न भी ले सकते हैं, दोनों क्रियाएं, ठीक है। चलिए कौन बताएगा, कृष्णमन्यु आप पहले बताइए, अनम्यूट करके आप बता पाएंगे वाला सेंटेंस, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूं। आप बताइए कृष्णमन्यु, क्या हमने अभी तक किताब नहीं लौटाई है, बताइए। Sir, haven't we booked yet? ओके, haven't, वेरी गुड, अच्छा ट्राई, haven't we dash, Booked yet. नहीं बेटा, haven't we dash book yet, यहां ध्यान दीजिए, आपको क्रिया बीच में डालनी है। कृष्णमन्यु बेटा थर्ड फॉर्म लगाओ, देने की क्रिया क्या होती है, टू गिव, गिव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, Sir, Give. बताइए। Given. गिवन, गिवन, हाँ, या तो गिवन बोलो, या जो अरबाज कह रहे हैं वो भी ठीक है, गिवन के बजाय आप रिटर्न भी लिख सकते हो, रिटर्न, रिटर्न, रिटर्न यानी लौटाना, राइट, रिटर्न। सो haven't we given the book yet, haven't we returned the book yet, क्योंकि वो स्पेसिफिक बुक है, वो वाली किताब है जो हमने इश्यू करवाई थी, तो हम दो लगाएंगे किताब के पहले, क्योंकि वो लाइब्रेरी वाली किताब है, एक स्पेसिफिक किताब है। सो हमारा क्या हो जाएगा प्रश्न कृष्णमन्यु, haven't we given the book yet, या फिर बेहतर जो प्रश्न है वो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर है, haven't we returned the book yet। क्लियर है सभी को, कोई डाउट, yes, sir. समझ में आ रहा है सभी को, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया है प्रेजेंट परफेक्ट ओवर, यहां तक सभी को समझ में आ गया, राइट। तो हम इसमें क्या करते हैं, परफेक्ट सुनते ही थर्ड फॉर्म याद आ जाना चाहिए आपको, और थर्ड फॉर्म के लिए वो आपको गाना याद आना चाहिए, सिंग सैंग संग, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, ईट एट ईटन, राइट रोट रिटन, याद है आपको एवरीवन। इसको आप अच्छे से देखिएगा, आपको हमने व्हाट्सएप पे भेजा है वो पूरा एक PDF, उसके अंदर आपको मुख्य क्रिया टू ईट, उसका सेकंड फॉर्म एट, उसका थर्ड फॉर्म ईटन, उसका फोर्थ फॉर्म ईटिंग, सारे हैं उसके अंदर। ये सभी हमारे काम आते हैं, जब हमें ING काम में लेना होगा तो ING पे चले जाएंगे, जब परफेक्ट की बात करेंगे तो थर्ड फॉर्म की बात करेंगे, और जब हम सिंपल पास्ट की बात करेंगे तो हम कौन सा फॉर्म लेते हैं काम में, Third form. जब हम सिंपल पास्ट की बात करते हैं तो रुबीना कौन सा फॉर्म हम काम में लेते हैं, Second form. सेकेंड फॉर्म। जब Second. हाँ, सिंपल पास्ट में बहुत आसान है जीवन, सिर्फ सेकंड फॉर्म लगाया, ना कोई एम लगाना है, ना कोई इज लगाना है, ना कोई हैव लगाना है, ना कोई हैव हैज, कुछ नहीं लगाना, सीधे व्यक्ति को ढूंढना है कि आई है, कि यू है, कि ही है, कि शी है, कि इट है, कि वी है, कि दे है, जो भी है उसके साथ सेकंड फॉर्म लगा दीजिए, काम खत्म, ठीक है। सबसे सिंपल मुझे लगता है, हालांकि उसका याद करना थोड़ा सा आपको मेहनत लगेगी, बट इट विल बी डन। चलिए अब हम चौथे पे चलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, बड़ा लंबा नाम है, कौन बता सकता है इसमें क्या करते हैं, हाथ रेज करना है आपको, देखते हैं कौन है जो सबसे स्ट्रांग है इस टॉपिक में। आई एम श्योर यू ऑल आर स्ट्रांग। ओके, सो वी लिसन फ्रॉम मानसी। मानसी, मैं जब तो मिटाता हूं, आप हमें बताइए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, कैसे बनता है, क्या एक वाक्य देंगे आप हमारे को, बताइए मानसी।
या मानसी, यू वांट टू से समथिंग मानसी? बताइए कैसे बनता है, क्या होता है? You'll have to unmute yourself. I cannot hear you anymore. मानसी, are you saying something? आपकी आवाज नहीं पहुंच रही बेटा हमारे तक, आप बोलो कुछ. I don't know. Rubina, would you like to help us for this one? Yes, sir. जो काम बहुत लंबे समय तक हुआ है, ठीक है, कोई पास्ट में बहुत लंबे समय तक हुआ है. वेरी गुड. और फिर पास्ट में, हाँ हाँ, कंटिन्यूअस में भाग के पर आएंगे. Very- Has or have, subject plus has or have plus subject plus हाँ सब्जेक्ट प्लस, been. हाँ बिन, बिन, इसकी ध्वनि होती है बिन, सब बोलिए बिन. आपके सर been. 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 बिन. Bin. और कौन सा फॉर्म लगेगा इसमें? आई एम सॉरी, no no not third form. yeah, ing, right, you're right. हाँ ing फॉर्म, राइट, आई एम सॉरी, ing फॉर्म. ठीक है, तो बिल्कुल ठीक कहा रुबिना ने कि आप व्यक्ति को ढूंढिए. आई हैव बिन लिविंग इन दिल्ली फॉर past 5 years. Right, for the past 5 years I have been living in Delhi. Yeah, she has been studying since morning. वो सुबह से लगातार पढ़ती आ रही है. याद है आपको, हमने जब सिखाया था, हमने आपको कहा था दीप्ति कि ये हिंदी में ऐसे बोलना बड़ा अटपटा लगता है. वो सुबह से लगातार पढ़ती आ रही है. Isn't it दीप्ति? हमने क्या कहा था आसान शब्दों में हिंदी में? हमने कहा था वो सुबह से पढ़ रही है. यही बोलते हैं ना हम? Yes, sir. लेकिन इसका जो भाव है, the sense and the feeling behind it, Arvaz, it is that this work has been happening. ये होता आ रहा है काम उस क्षण से अभी तक. अब आगे होगा वो हमें नहीं पता, इसलिए इसको हम कहते हैं रुबिना परफेक्ट, क्योंकि ये यहां तक तो हो गया है, खत्म. अब आगे होगा नहीं होगा, वी हैव नो आइडिया अबाउट इट. इज दैट ओके एवरीवन? ठीक है, चलिए Yes, sir. देख लेते हैं फटाफट से. तो दीप्ति आपसे चालू करते हैं. वो सुबह से गाना गाता आ रहा है. वो सुबह से गाना गा रहा है. Has. He has. Sir, third form. नहीं, थर्ड फॉर्म नहीं है दीप्ति. कंटिन्यूस है तो थर्ड फॉर्म तो कभी नहीं आ सकती ना. हाँ, बिन, बिन लगाना है आपको. बिन, he has been He has been singing. singing. Very good. He has been singing कब से? Since सुबह से. Since morning. Since morning. Very good. He has been singing since morning. यहाँ तक क्लियर है सभी को? दीप्ति समझ में आता है आपको? राइट, ओके, ग्रेट. चलिए, कोई चीज थी, हम उसका प्रयास कर रहे थे और वो चीज हो ही नहीं रही थी. वो कोई हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे थे, वो इंस्टॉल ही नहीं हो पा रहा था. तो हमने बड़े परेशान हुए. हमने कहा कि हम सुबह से ट्राई करे जा रहे हैं, करते आ रहे हैं, करते जा रहे हैं, कर रहे हैं. तो आप कैसे बोलोगे इसको अरबाज? हम सुबह से नहीं, सुबह से नहीं, हम कल से ट्राई करते आ रहे हैं. We have been trying since yesterday. वेरी गुड. वी हैव बीन ट्राइंग सिंस यस्टरडे. इसको क्या आप इसमें ओके हैं? विव, वी हैव को विव बिन, राइट? विव बिन ट्राइंग सिंस यस्टरडे. सॉरी, ट्राइंग टू. We have been trying to install. या आपने और उसमें क्लैरिटी दे दी रुबिना. वी हैव बीन ट्राइंग टू डू व्हाट? ट्राइंग टू इंस्टॉल. ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है. हम मैंने बस इतना कहा था कि मैंने आपको कॉन्टेक्ट दिया, फिर हमने कहा हम सुबह से प्रयास करते आ रहे हैं. अब किस चीज का प्रयास है वो आप बता सकते हैं रुबिना? ट्राइंग टू इंस्टॉल, ये ठीक है. ट्राइंग टू कनेक्ट, हम सुबह से उससे कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं पर उससे बात ही नहीं हो पा रही है. वी हैव बीन ट्राइंग टू कनेक्ट विद हिम सिंस यस्टरडे. टू कनेक्ट. तो ये जो मैं टू के साथ बातें लिख रहा हूं, वो जो रुबिना ने बताई है वो ये है कि हम क्या करने का प्रयास करते जा रहे हैं. वो ट्राइंग के बाद टू के साथ उस क्रिया को लिखना है. राइट, जैसे आपने कहा सरिता, मैं कल से उससे
बात करने का प्रयास कर रही हूं पर उससे बात ही नहीं हो पा रही है. I have been trying to talk to her since yesterday, but I have not been able to talk to her. Right? But I haven't been able to talk to her. तो इस तरीके से आप ये बात बोलेंगे. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. इसी का आप नेगेटिव देख लेते हैं. वो सुबह से नहीं पढ़ रहा है. आप ट्राई कीजिए साक्षी. वो सुबह से नहीं पढ़ रहा है, वो तो बस अभी बैठा है पढ़ने. तो वो तो बस अभी बैठा है पढ़ने को भी ट्राई करते हैं, कैसे बोलेंगे? और इतना बताइए पहले साक्षी, वो सुबह से नहीं पढ़ रहा है, वो तो जस्ट अभी बैठा है पढ़ने. साक्षी बताइए. Sorry. या He has not been studying कब से? सिंस मॉर्निंग. this morning. Very good. He has not been studying since morning. He is studying. He is studying since 2 hours. He is studying. Yeah, he has been studying. इसमें मैं change कर देता हूँ क्योंकि he is studying नहीं होगा. He has been studying. वो तो अभी 2 घंटे से पढ़ रहा है बस, right? अगर वो 2 घंटे से पढ़ रहा है तो he has been Reading he has been studying since 2 hours. four लगेगा ना? He has been studying for 2 hours. Just a second. He has been studying. He has been studying. Since करेंगे तो हम वो टाइम दे देंगे. He has been studying for 2 hours. Yeah, for 2 hours. Since 2 hours. Yeah, because for is for a duration. He has been studying for 2 hours. 2 घंटे से लगातार पढ़ता रहा है. लेकिन हाँ, अगर वो समय होता, मानिए 2 घंटे पहले बज रहे होते 11, तो हम लिखते he has been studying since 11 o'clock. तब हम since लगा दें. You're right. So he has been studying for 2 hours. Clear है यहाँ पे? So he has not been studying since morning. He has been studying for 2 hours. वो 2 घंटे से लगातार पढ़ता आ रहा है. Is that clear to everyone? समझ में आ रहा है सभी को? Yes? Is that okay? Yes, sir. Okay, great. चलिए आगे बढ़ते हैं. So अब हम 1-2 क्वेश्चंस बना लेते हैं. क्वेश्चन कैसे बनेंगे इसके अंदर देखते हैं हम. क्या तुम क्या तुम मुझसे बात करने का प्रयास कर रहे थे सुबह से? क्या तुम मुझसे बात करने का प्रयास कर रहे थे सुबह से? कैसे बोलेंगे इस चीज को? क्या तुम मुझसे बात करने का प्रयास कर रहे थे सुबह से? या रुबिना बताइए. Have you been trying to talk with me since morning? वेरी गुड. हैव यू बीन, मतलब कोई तो प्रयास कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा. उसका मिस कॉल आ रहा था, कभी जा रहा था, कभी फोन कट रहा था, मैं समझ ही नहीं पा रहा था. तो मैंने उसको फाइनली पूछा, क्योंकि मुझे लगा शायद वही था, तो मैंने उसको पूछा हैव यू बीन ट्राइंग टू टॉक टू मी since morning? Have you been trying to connect with me since morning? ठीक है, क्लियर है रुबिना? हेलो या अरबाज? सर, हैव यूज होगा ना थे? नहीं नहीं, अभी हम इसी टेंस में ना हैव और हैज में चलेंगे ना अरबाज. हैव यू बिन ट्राइंग, क्योंकि अभी तक आ गया हूं ना. हैव यू बिन ट्राइंग होगा क्या? हैव और हैज वो पहले प्लेस पे आ जाएगा और फिर हमारा व्यक्ति आ जाएगा यू या ही या शी, और फिर उसके बाद हमारा बिन. हैव यू बिन ट्राइंग? या करते आ रहे हैं, करते आ रहे थे. हाँ, अब देखिए वही तो बात यही होती है ना, क्योंकि हिंदी में हम ये बड़ा अटपटा हो जाएगा. क्या तुम ही सुबह से मुझे लगातार बात करने का प्रयास करते आ रहे हो? वो थोड़ा अटपटा हो जाएगा हिंदी में कहना. आप समझ में जो बात कहना चाह रहा हूं? क्योंकि इसका सेंस क्या है? सेंस ये है कि मैं सामने वाले को कह रहा हूं कि यू आर द वन, आप ही हो ना जो मेरे से सुबह से बात करने का प्रयास करते आ रहे हो. तो अब हिंदी में ये नहीं बोलते हैं, हमारे पास ऐसा नहीं बोलते हैं ना. हम बोलते हैं आप ही हो ना जो मेरे से सुबह से बात करने का प्रयास कर, यू आर ट्राइंग टू टॉक टू मी. आप ही हो ना जो मेरे से बात करने का ट्राई कर रहे थे. आप ये नहीं बोलते हो ट्राई करते आ रहे हो. डज दैट मेक सेंस अरबाज? लेकिन सर
जो आपने सेंटेंस भेजे थे ना टेंस से, हाँ उसमें देखे थे, उसमें देखे थे। क्या चीज उसमें? है ना? अ, मैं समझा नहीं, वापस बोलेंगे आप अरबाज? आपने जो और टेंस भेजे थे एग्जाम्पल के साथ, हाँ उसमें मैंने देखा था जैसे कि करते आ रहे थे तो मैं हैड बीन लगा, हैड बीन। हाँ, देखिए मैं समझ गया आपकी बात। हैड बिन लगाना है या हैव बिन लगाना है, हिंदी में इन दोनों को बोलने का एक ही तरीका हो जाता है। इसलिए मजबूरन में जब मैं इसका हिंदी में अनुवाद करूंगा ना अरबाज, तो दोनों में ही करते आ रहे थे कर दूंगा, ठीक है? क्योंकि इसको प्रश्न बनाते समय थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं हिंदी में किसी को ये नहीं कहता, जिनको भी हिंदी आती है वो इस चीज को आप समझ पाएंगे कि मैं किसी को कहूंगा कि आप ही हैं क्या जो सुबह से फोन कर रहे हो। आप ये बोल आप ये बोल दीजिएगा। अच्छा, इसमें कोई फर्क लगता है कि आपको अरबाज एंड एनी एवरीवन एल्स, मान लीजिए कोई आपको सुबह से फोन कर रहा था दीप्ति, और आपको दोपहर में वो व्यक्ति मिल गया, आपको लगा अच्छा यही है, कोई स्टूडेंट था आपका या कोई फ्रेंड था, तो उसने कहा मैम मैं ही आपको फोन कर रहा था एक्चुअली सुबह से। तो आपने कहा अच्छा अ, आप ही हो जो मुझे सुबह से फोन करने का ट्राई कर रहे हो या कर रहे थे, क्या पूछोगे उसको आप? कर रहे कर रहे थे। ठीक है, अब होगा क्या कि हमें हिंदी में तो थे ही लगाना पड़ेगा इसके अंदर अरबाज। आपको लगेगा पर सर थे तो हैड बिन वाला हो जाएगा, ये वाला पास्ट परफेक्ट। नहीं, हमने एक्चुअली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो सीखा ही नहीं अभी तक। हमने नहीं सीखा ना अभी तक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, नहीं सीखा है इसके अंदर। तो अभी नहीं सीखा है इसके अंदर, है ना, नहीं सीखा है। तो आप शायद अरबाज यही कह रहे हो ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हो आप शायद। हाँ सर। हाँ, तो इनका कहना है, अभी हमने सीखा नहीं इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन अरबाज ने पढ़ लिया तो मैं अरबाज आपको बताना चाहूंगा कि हिंदी में बोलते समय हम जब ये बात बोलेंगे ना कि अच्छा तुम ही हो क्या जो सुबह से मुझे फोन पे बात करने का ट्राई कर रहे थे, तो हम जब थे बोलते हैं ना, तो वो ना केवल हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए बोलते हैं बल्कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए भी बोलते हैं। इसलिए आपको लगा कि सर मैंने आपके जो सेंटेंस है उसमें दोनों में थे देखा था, तो दोनों में थे लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो थे बिल्कुल सही है क्योंकि वो तो पास्ट परफेक्ट है। इसमें भी मुझे मजबूरी में थे लगाना पड़ता है या था लगाना पड़ता है, क्योंकि मैं हिंदी में ये नहीं बोलता हूं अच्छा तुम ही हो क्या जो सुबह से मुझे फोन पे बात करने का ट्राई कर रहे हो, कर रहे थे। समझ में आया आपको? वही कभी हम कभी कर रहे थे बोल देते हैं, कभी कर रहे हो ऐसा कुछ बोलते हैं, जहाँ पे थे लगाते हैं वहाँ पे ऐड कर देते हैं। नहीं, क्योंकि क्या हाँ देखिए, हिंदी में हमारे पास बहुत वैरायटी है बोलने की और हम लोग इतना परेशान नहीं होते। बट आप ये ध्यान रखिएगा, आप इसका फील ले लीजिए। फील क्या कहता है इसका दीप्ति? फील इसका ये कहता है कि वो का एक्शन एक क्षण से, पास्ट के एक क्षण, एक समय, एक पल से चालू होता हुआ आ रहा है यहां तक, यहां तक। ठीक है, यहां तक क्लियर है अरबाज आपको सभी को? और अब जो अरबाज का प्रश्न है उसका सिर्फ उत्तर अरबाज को ही मैं दे रहा हूं क्योंकि इन्होंने ही पढ़ा है और शायद बाकी लोगों ने भी पढ़ा नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं इसलिए। तो अरबाज आपने जो बात बोली थी हैड वाला, उसमें क्या होता है कि वो जो समय की जो लंबाई है ना, वो जो ट्रैवल होता है वो पास्ट में चालू होता है, पीछे कहीं पे, पीछे कहीं तो ये भी चालू होता है, लेकिन ये कहां तक ट्रैवल करके आता है? यहां तक, वर्तमान तक, यहां तक आता है। लेकिन आप जो कह रहे थे ना हैड बिन ट्राइंग, तो वो पास्ट में चालू होता है और वो पास्ट में ही रुक जाता है, वो वर्तमान तक नहीं आता। क्या ये फर्क आपको समझ में आता है अरबाज? इसको और डिटेल में चर्चा करेंगे, चिंता मत कीजिए, आपके साथ मैं इस पर चर्चा करूंगा। तो हम देख लेंगे, अगर सभी के साथ करना चाहूंगा तो मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये हम एक बार देख लेंगे, मुझे याद दिलाइएगा परवाज एक बार, हम है ना इसको कर लेंगे। चलिए, तो यहां तक सभी को क्लियर है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट? तो हमें इसमें हैव और हैज के साथ बिन लगा के थर्ड, आई एम सॉरी, ing form लगाना है, not the third form. So it will go like this that she has been sleeping since morning, वो सुबह से सोती आ रही है। अब ये तो बात है ना अरबाज, हम हिंदी में ये कहाँ बोलते हैं वो सुबह से सोती आ रही है, नहीं बोलते ना, क्या बोलते हैं हिंदी में एवरीवन? वो सुबह से सो रही है। वो सुबह से सो रही है। तो आप कहोगे सर फिर तो आप ये बताओ ना शी इज स्लीपिंग, आप ये क्यों बोल रहे हो शी हैज बिन स्लीपिंग क्यों बोल रहे हैं? हम शी स्लीपिंग बोल देते हैं ना, क्योंकि वो तो बहुत लंबे समय से सोती आ रही है इस क्षण तक, इसलिए हम दीप्ति इसको बोलते हैं शी हैज बिन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। तो हिंदी में बोलने के बहुत तरीके होते हैं। या अरबाज? उसमें टाइम लग गया सुबह से। हाँ, सुबह से एग्जैक्टली तो उसमें सुबह से लगा इस वजह से, और वो लंबा चला। लेकिन हिंदी में तो हम बोलते हैं ना कि वो सुबह से सो रही है, तो हम सुबह से लगा के फिर सो रही है बोलते हैं, समझ में आता है। अन्यथा आपको जो एकदम
स्पष्ट और सटीक इसका अनुवाद है वो होगा वो सुबह से सोती आ रही है, सोती जा रही है, बट यू डोंट से दैट वे. सो कीप योर हिंदी करेक्ट एंड कीप योर इंग्लिश करेक्ट. ये दोनों को अलग अलग रखेगा, वरना मिक्स कर देंगे तो बहुत गड़बड़ हो सकती है एट टाइम्स. चलिए, सो ये हमें समझ में आ गया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट में चालू होने वाला एक्शन जो वर्तमान तक चला है और उसके साथ एक समय का कंपोनेंट रहता है सिंस या फॉर. सिंस बताता है उसका चालू होने का पल और फॉर दिखाता है उसकी पूरी अवधि. तो जैसे मैं सुबह से पढ़ता आ रहा हूं, आई हैव बिन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, और मैं 5 घंटे से लगातार पढ़ता आ रहा हूं, को मैं कहूंगा आई हैव बिन स्टडिंग फॉर 5 आवर्स नाउ. आई हैव बिन स्टडिंग फॉर 5 आवर्स नाउ. क्लियर है सभी को? एनी डाउट? समझ में आ रहा है सभी को? राइट, चलिए. ओके, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, सबसे जो लंबा नाम है इसका. ओके, आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग कौन हेल्प कर सकते हैं मेरी सिंपल पास्ट में? तब तक मैं इसको मिटाने का प्रयास करता हूँ. ओके, साक्षी इज गोइंग टू हेल्प अस. एनीवन एल्स? और भी कोई है? सरिता, आप बताओगे हमारे को क्या होता है? या कृष्णमन्यु, आप बताओगे हमारे को व्हाट इज सिंपल पास्ट? चलिए, सो साक्षी आप बताइए हमारे को फटाफट से व्हाट इज सिंपल पास्ट. हाउ डू यू डू दैट? या सर, जैसे सर कोई भी काम खत्म हो गया ठीक है, या मतलब पास हो गई है, एग्जांपल वी फिनिश्ड आवर वर्क, हमने अपना काम खत्म कर लिया. वेरी गुड. खत्म कर लिया, अच्छा किया आपने लिया पे रुके. अगर आप कहते ना हमने हमारा काम खत्म कर लिया है, तो हम कहां पहुंच जाते? हैव. तब हम प्रेजेंट. हाँ, वेरी गुड. है बोलते ही आप वर्तमान तक ट्रेवल कर जाते हो, लेकिन आपने तो पास्ट में कह दिया. हाँ, हम खत्म कर लिया, हमने खा लिया, हमने देख लिया, हमने बोल लिया, हमने समझ लिया. राइट, इस प्रकार से थोड़ा बहुत जोड़ूंगा हिंदी से जितना समझ में आ जाए. चलिए, तो इसमें क्या करना है? इसमें सब्जेक्ट के साथ हमें क्या जोड़ना है दीप्ति? सेकंड फॉर्म, बस. ठीक है, ये लगाना है, बहुत आसान काम है. चलिए, सो आप बता दीजिए. साक्षी का आपने वाक्य बताया, हमने हमारा काम खत्म कर लिया. या वी फिनिश्ड आवर वर्क. Very good. We finished our work. FINI. We finished our work. ठीक है, we finished our work. Right. Okay. अब एक बात याद कीजिए. जिस प्रकार से रुबिना, दीप्ति, आप लोगों को याद होगा, प्रांजल, जब हम सिंपल प्रेजेंट करते थे तो उसमें एक और तरीका होता था बोलने का. वो क्या तरीका होता था? डू और डज. याद है आप सभी को? अरबाज, आई ईट, आई डू ईट. यस सर. उसी प्रकार से इसमें भी एक शब्द होता है. बताइए वो कौन सा शब्द है जो हर जगह लग सकता है? और डिड. वेरी गुड, डिड. तो हमें क्या करना है? आई डिड, यू डिड, ही डिड, शी डिड, इट डिड, वी डिड, और अंत में दे डिड. डिड लगाने के बाद हमें कौन सा फॉर्म चाहिए होता है वर्ब का? ओरिजिनल फॉर्म. उसमें फिर हमें उसमें चेंज नहीं करना. राइट दीप्ति, आपको याद है? सो वी फिनिश्ड का एक और तरीका क्या होगा साक्षी, अगर मैं वी डिड के साथ लिखूं तो? या वी डिड फिनिश. फिनिश हो जाएगा अरबाज, दीप्ति? फिनिश. वी डिड फिनिश. राइट. जब डिड लग जाएगा तो हमें वापस से उसका ओरिजिनल वर्ब लगाना पड़ेगा. पास्ट टेंस में नहीं जाएंगे, फिर हम वी डिड फिनिश. जिस प्रकार से दीप्ति आपको याद होगा कि जब डू और डज लगता था तो पुनः हम ईट लगाते थे. आई ईट, आई डू ईट, ही ईट्स, ही डज ईट. याद है आप सभी को? उसी प्रकार से डिड के केस में आई फिनिश्ड, आई डिड फिनिश, यू फिनिश्ड, यू डिड फिनिश. तो इसमें अच्छी बात क्या है कि वो फिनिश्ड भी सेम 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 चलेगा और डिड फिनिश, डिड फिनिश, डिड फिनिश भी सेम 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 चलेगा. उसमें कोई परिवर्तन नहीं है. राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. सरिता, आपको बताना है हमने हमारा काम फिनिश नहीं किया. सरिता, हमने हमारा काम फिनिश नहीं किया. बताइए. we haven't finished our work. नहीं, हमने हमारा काम फिनिश नहीं किया बोला है मैंने ये नहीं कहा हमने हमारा काम फिनिश नहीं किया है. तो इट इज नॉट प्रेजेंट परफेक्ट सरिता, इट इज सिंपल पास्ट.
कैसे होगा? एनीवन? We did not finish our work. We did not finish our work. Very good. We did not finish our work. That's correct. We did not finish our work या we didn't finish our work. We didn't. We didn't भी बोलते हैं कई लोग. We didn't. Is it clear? समझ में आ रहा है सभी को? Right? यस सर। ठीक है. अच्छा. Okay. तो जब कभी भी आप नेगेटिव करोगे ना तो कुछ भी कर लो आपको डिड तो लगाना ही पड़ेगा. जिस प्रकार से सिंपल प्रेजेंट में जब नेगेटिव करते थे तो डू और डज लगाते थे ना, आई डू नॉट ईट, ही डज नॉट ईट, उसी प्रकार से अंग्रेजी के अंदर जब हम सिंपल पास्ट का नेगेटिव करेंगे तो डिड आ जाएगा और फिर नेगेटिव हो जाएगा. आई डिड नॉट ईट, मैंने नहीं खाया. शी डिड नॉट स्पीक, उसने नहीं बोला. इस प्रकार से. चलिए अब इसका हम एक बार प्रश्न बना लेते हैं. ओके. क्या तुमने, आप ट्राई कीजिएगा अरबाज, क्या तुमने सिल्वी से बात की? क्या तुमने सिल्वी से बात की? हेलो सर। हाँ. Did you talk? Did you talk? Hindi? Yeah, that's correct. Did you talk to Sylvie? Did you speak to Sylvie? Perfect. Did लगाने के बाद हमें याद है सभी को speak लगाना है या talk लगाना है? Did you speak to Sylvie? Perfect. समझ में आता है आपको सभी को? इसका जवाब देते हैं. रुबिना आप बताइए. नहीं, मैंने सिल्वी से बात नहीं करी. No, I didn't talk. Yeah. No, I didn't talk with Sylvie या to Sylvie, दोनों ठीक है. या फिर I didn't भी बोलते हैं और didn't भी बोलते हैं, बट अमेरिकन स्टाइल में बोलते हैं didn't एंड ब्रिटिश स्टाइल में बोलते हैं didn't, राइट? सो आप you can, जो भी आप पिक करना चाहें. सॉरी. हर बात में बताया did you speak to, तो उसमें तो लगेगी क्या speak to या talk. अच्छा, पहली बात तो स्पीक्ड कोई शब्द नहीं होता, स्पोकन होता है. ठीक है. सॉरी. ठीक है. तो एक गलती को कम किया हमने, तो हमने स्पीक्ड को नया शब्द बनाया, उसको हटाते हैं, हम लाते हैं स्पोकन. अब याद कीजिए आप साक्षी, जब कभी भी डिड आ जाएगा मैदान में तो हमारी कौन सा फॉर्म आ जाएगा? मुख्य क्रिया आ जाएगी. थर्ड फॉर्म, यानी थर्ड फॉर्म क्या, सेकंड फॉर्म जो है ना वो स्पोक. आपको एक्चुअली स्पोक कहना चाहिए था. स्पोक, राइट? सो स्पोक है. तो स्पोक नहीं आएगा यहाँ पे. स्पोक इसलिए नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे हमने डिड लगा दिया. तो डिड यू स्पीक टू सिल्वी, राइट? समझ में आ रहा है आपको? डिड लगाने के बाद हमें वापस जो मेन वर्ब है वो आ जाता है, डिड यू स्पीक. ठीक है साक्षी? यस सर. तो आपका प्रश्न होना चाहिए था कि सर यहाँ पे स्पोक क्यों नहीं आया, यहाँ पे स्पोक क्यों नहीं आया, जो हमारा सेकंड फॉर्म है. तो हमारा उत्तर ये है कि जब डिड लगता है तो हमारा सेकंड फॉर्म गायब हो जाता है सिंपल पास्ट में से और वापस से हम मुख्य क्रिया ले आते हैं, डिड यू स्पीक. ठीक है. ओके. आई फॉरगेट इट. हाँ, आई फॉरगॉट इट. आई फॉरगेट इट नहीं, आई फॉरगॉट इट, मैं भूल गई. राइट? मैं भूल गई. हाँ. चलिए आगे बढ़ते हैं. इसका जवाब देना आपको दीप्ति. हाँ, मैंने सिल्वी से बात कर ली. हाँ, मैंने सिल्वी से बात की. हाँ, मैंने सिल्वी से बात की. Yes, I did speak to Sylvie. अरे वाह, आपने तो बड़ा खतरनाक वाला सेंटेंस बड़ा आसानी से बना लिया. यस, आई डिड स्पीक टू सिल्वी का एस लिख देता हूं. इसका एक और तरीका क्या हो सकता है? एनीवन? Yes, I did it. यस आई डिड. यस आई डिड. ठीक है. एक और तरीका है कोई? एक और कोई तरीका है? रुबिना, एनीवन एल्स? मानसी, कोई और तरीका? Yes, yes, I spoke. वेरी गुड. यस आई स्पोक. यस आई स्पोक. SPOK. आई स्पोक टू सिल्वी. इसको मैं एक बार थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं ताकि डिफरेंट कलर में अलग से दिख जाएगा, आपको आंसर पकड़ में आ जाएगा. यस आई डिड स्पीक टू सिल्वी. यस आई डिड, अन्यथा यस आई स्पोक टू सिल्वी. ठीक है, हर बात समझ में आ रहा है आप सभी को? यस सर। चलिए. ओके, तो ये हुआ हमारा सिंपल पास्ट जिसके अंदर हमने देख लिए पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं. ओके, एक और ट्राई करते हैं फटाफट से.
क्वेश्चन है नेगेटिव के अंदर। आपको क्वेश्चन बनाना है अरबाज। क्या तुम अपने गांव नहीं गए? क्या तुम अपने गांव नहीं गए छुट्टियों में? क्या तुम अपने गांव नहीं गए छुट्टियों में? एनीवन ट्राई कीजिए। आई मीन एवरीवन, यू प्लीज मेक फर्स्ट एंड देन लेट मी नो। क्या भाई तुम वो म्यूट अच्छा, तभी मैं कहता हूं कि आप कृपया अपने कैमरा ऑन रखा कीजिए। मुझे पता ही नहीं चलता, आप लोग बोलते रहते हो, फिर मुझे आवाज नहीं आती, फिर आप अरे सर मैं तो म्यूट पे था। तो हाउ वुड आई गेट टू नो इफ यू डोंट पुट योर कैमरास ऑन? चलिए अरबाज बताइए, क्या तुम अपने गांव नहीं गए छुट्टियों के दौरान या छुट्टियों में? did not you go राइट, to village vacation? very good. Didn't you go to your village during vacations? Did not you go to your village during vacations? Didn't you go to your village during vacations? Perfect. Clear है सभी को? समझ में आ रहा है? Right? I can see your bars now. Is that Yes, okay? sir. Yeah. So didn't, yeah, did not. Right? Did not you. Perfect. Okay. Did you not? Okay. So उसमें did you not go? Yeah, did you not? Right? Did you not go to your village during the vacations? That's how you would say. So didn't you go? Didn't you go बोल सकते हैं या didn't you go बोल सकते हैं, दोनों ठीक है। या did you not go? ओके आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट हमारे पास है पास्ट कंटिन्यूअस। चलिए बताइए पास्ट कंटिन्यूअस, हु कैन ट्राई पास्ट कंटिन्यूअस? एनीवन? पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? साक्षी से हमने सुन लिया, और कोई? रुबिना से भी सुन लिया, और कोई बता सकता है? कृष्णमन्यु आप बताओगे बेटा पास्ट कंटिन्यूअस फटाफट से। पास्ट में कंटिन्यूअस, हाँ वॉज और वर्ड लेते हैं और क्या लगाते हैं? क्रिया का कौन सा रूप? आईएनजी। वेरी गुड, आईएनजी। ING. वेरी, आज तो पूरी पढ़ाई करके आए हो कृष्णमन्यु आप, इज इट? यस, चलिए वीकेंड में आपने मेहनत करी है, ग्रेट। चलिए सो यू हैव टू इंडीड वर्क वेरी हार्ड। तो इन्होंने बिल्कुल सही बताया, पास्ट कंटिन्यूअस में हमें सब्जेक्ट के साथ वॉज वर लगाना है और कौन सा फॉर्म लगाना है? आईएनजी फॉर्म। ठीक है, चलिए आप ट्राई करिए कृष्णमन्यु। मैं खा रहा था, मैं खा रहा था, कैसे बोलेंगे कृष्णमन्यु? हाँ आईएनजी। आई वॉज ईटिंग, बस आई वॉज ईटिंग फूड। कल मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग फूड। ठीक है, चलिए अरबाज आप बताइए। वो पढ़ रहे थे जब मैं पहुंचा। वो पढ़ रहे थे जब मैं पहुंचा। अब आप सभी को याद है एवरीवन, इवन बिफोर अरबाज गिव्स द आंसर, सुन लीजिए सब लोग, ये जो पास्ट कंटिन्यूअस होता है ना, ये अपने आप में बड़ा अजीब सा सुनाई देता है। मैं खा रहा था, मैं देख रहा था, इसमें जनरली एक और क्लॉज साथ में जुड़ा हुआ होता है, तब इसका सेंस बेटर बनता है, राइट? तो चलिए आप अरबाज ट्राई कीजिए। वे पढ़ रहे थे जब मैं पहुंचा। He was learning when I reached. दे, He, sorry, they was learning. They, sorry, sir, they were learning. हाँ दे वर स्टडिंग, राइट? स्टडिंग, पढ़ रहे थे, राइट? दे वर स्टडिंग व्हेन I reached, I arrived, I came। सभी को याद है, राइट? आपको याद है सभी को? दीप्ति, रुबिना, साक्षी, हम लोग दूसरे हिस्से में कौन सा टेंस रखते हैं कंटिन्यूअस के साथ? Past tense. हाँ सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, याद है आप सभी को, राइट? ठीक है, चलिए तो ये हमने देख लिया था डिटेल में, मुझे याद है, आपको अच्छे से याद होगा ये वाला। एक दो और सेंटेंस फटाफट से ट्राई करते हैं इसके। ओके, वो गा नहीं रही थी जब मैं उससे मिली। वो गा नहीं रही थी जब मैं उससे मिली। आप ट्राई कीजिए प्रांजल। वो, अच्छा आपने हाथ रेज किया। वो गा नहीं रही थी जब मैं उससे मिली। She was not singing when I met her. वेरी गुड, she was not, या she wasn't singing when I met her. Perfect. She wasn't singing when I met her. When I met her, जब मैं उससे मिली वो गाना नहीं गा रही थी। When I met her. Okay, perfect. Clear है सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? दीप्ति, मानसी, No, sir. ठीक है। चलिए मानसी आप ट्राई कीजिए। एक आपसे पूछते हैं,
क्या तुम टीवी देख रहे थे जब वो गया? क्या तुम टीवी देख रहे थे जब वो कोई एक और मेल पर्सन है, जब वो गया, जब वो वहां से गया। मानसी, क्या तुम टीवी देख रहे थे? He was क्या तुम टीवी देख रहे थे? तुम, यू। बताइए मानसी, बताइए, ट्राई कीजिए। Anyone else? Yeah. you have Sir, can I try? Okay, Manshi, would you want to try once quickly? Manshi, एक बार पूछ रहे थे मानसी से, अगर नहीं तो फिर हम बाकियों से पूछते हैं। मानसी, would you want to try? yes sir. हाँ, ट्राई कीजिए। अब देखिए, जब प्रश्न बनाएंगे मानसी, तो ये वाले शब्द पहले स्थान पे आ जाएंगे, ये वाले शब्द पहले स्थान पे आ जाएंगे। क्या तुम टीवी देख रहे थे जब वो गया? Was you watch TV? Were you? Were you watched TV? अब सुनिए मानसी बेटा सुनो, आईएनजी आएगा ना, पास्ट कंटिन्यूस है, तो क्या लगाओगे? Watching. वॉचिंग। वर यू वॉचिंग टीवी? क्या तुम टीवी देख रहे थे? वेरी गुड। वर यू वॉचिंग टीवी? कब? व्हेन, जब वो चला गया। व्हेन ही, When he going. सुनिए एक सेकेंड मानसी, गोज होता है जाता है, गोइंग जा रहा है। जब वो गया, कौन सा टेंस है गया? Past. सिंपल पास्ट, ठीक है। Simple past. तो गो का बताओ पास्ट टेंस क्या होता है? Leave. या नांसी? Going. बेटा पास्ट में गोइंग क्यों आएगा? वो टेबल याद करो, आपको पढ़ाई थी ना, टू गो, वेंट, गॉन, गोइंग। तो गो के बाजू में कौन सा शब्द था? वेंट। वेंट हमारा सेकंड फॉर्म है ना, हाँ, तो क्या लगाओगे? व्हेन ही वेंट। When he. लेकिन उससे बेहतर शब्द है टू लीव, चले जाना, तो हम लगाएंगे व्हेन ही लेफ्ट। व्हेन ही लेफ्ट, जब वो चला गया, ठीक है। वेंट की बजाय लेफ्ट लगाएंगे। क्लियर है सभी को? एवरीवन ओके विद दिस वन? Were you watching TV when he left? Yeah. क्या तुम टीवी देख रहे थे जब वो गया? चलिए, रुबीना, is that okay? You want to say something? No, sir. Right? चलिए, सो हमने समझ लिया है कि जो पास्ट कंटिन्यूस होता है वो पास्ट के अंदर हमारे एक्शन के होने के, कंटिन्यू रहने के फील को दर्शाता है, और हमें नहीं पता कि वो पूरा हुआ या नहीं हुआ, पर उस समय तो वो चल रहा था, उसका वर्तमान में कोई इंपैक्ट नहीं होता है। और जनरली हमने देखा है कि उसके साथ कोई ना कोई और एक टेंस साथ में चिपक के चलता है, तब उसका ज्यादा सेंस निकल के आता है। मैं खाना खा रहा था, ये ऐसे हवा में कभी नहीं बोलोगे आप। आई वॉज ईटिंग फूड। कब? when you called me, I was eating food। तब हमेशा उसमें एक और टेंस चिपक के आता है साथ में, वो होता है सिंपल पास्ट। यहां तक ओके है सब लोग? थम्स अप, इज दैट ओके? राइट, चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। फटाफट से पास्ट परफेक्ट देख लेते हैं और फिर हम सिंपल फ्यूचर देख लेंगे। ओके, पास्ट परफेक्ट, बताइए कौन बता सकता है पास्ट परफेक्ट? पढ़ा था हमने पास्ट परफेक्ट, रुबीना याद आ रहा है आप लोगों को? मुझे थोड़ा सा बताइए, करा था नहीं करा था पास्ट परफेक्ट? ये पर हैट लगाना पड़ता हाँ, हैड लगाना पड़ता। है, हैट फॉर्म लगाना पड़ता हाँ, वेरी गुड। बस सब्जेक्ट के साथ हैड और थर्ड फॉर्म, बिल्कुल ठीक है। हाँ, और आपको याद है हमने आपको बताया था कि ये बहुत पीछे चला जाता है समय में। दीप्ति, जब मैं दिल्ली गई थी तब मैंने वहां पर तब मैंने वहां पे लाल किला देखा देखो था। चलिए, आप तो कह रहे थे रुबीना आपको हिंदी आती नहीं है, आपने तो था लगा दी एकदम सही। सर, तो थोड़ा बहुत आता चलिए सर, थोड़ी बहुत नहीं है मुझे। नहीं, I'm just kidding, but it's good. You are making a lot of efforts. So, although we root through Hindi because we have no other common language, that's why, but it's going well. So, had लगाना है subject के साथ और third form. चलिए, who can try this one? मैं दिल्ली गया था।
या मानसी। I went. हाँ अरबाज, ये वेंट क्यों लगाया आपने? हैड लगाना है ना आपको। I had went. हाँ मानसी। I went. I had gone. हाँ, हैड के बाद थर्ड फॉर्म, वेंट तो सेकंड फॉर्म है। आई हैड गॉन टू दिल्ली, आई हैड गॉन टू दिल्ली in 2020. I'd gone to Delhi, I'm sorry, in 2020. I'd gone to Delhi in 2020. It makes sense? रुबीना समझ में आता है? I'd gone to Delhi in 2020. मैं 2020 में दिल्ली गया था, दिल्ली गई थी। ठीक है दीप्ति, समझ में आ रहा है आपको ये वाला टेंस? Yes, sir. ओके परफेक्ट। एक और, कुछ और फटाफट से ट्राई कर लेते हैं। ओके उन्होंने हमसे पिछले साल बात की थी। उन्होंने हमसे पिछले साल बात की थी। बात करना, टू टॉक, टू स्पीक। कृष्णमन्यु बताइए। आई थिंक सरिता से पूछते हैं। सरिता आप बताइए। सरिता, उन्होंने पिछले साल हमसे बात की थी। सरिता, कैन यू हेयर मी? Yes, sir. हाँ बताइए। उन्होंने, हाँ दे, We had packets to us last year. they had talked to us. They had packed Talked बोलिए, talked. last year. They had talked to us Talked last year. LAST, last year. They had talked to us last year. They had spoken to us. Spoken भी लगा सकते हैं। They had spoken to us last year. They had talked to us last year. क्लियर है सभी को? हैड लगने के सेंस में इसमें समय में और पीछे चले जाते हो आप। ठीक है इसके Yes, sir. राइट इसके अंदर जो है उस बात के घटित होने की जो फील है वो पास्ट में ही रह जाती है, वो वर्तमान तक ट्रैवल करके नहीं आता। इसलिए हम इसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट और ना कि प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है क्लियर है सभी को? इज दैट ओके? आगे बढ़े हम लोग। ये टॉपिक तो क्लियर है। Yes, sir. और इसी में हमें नेगेटिव बोलना पड़ेगा। तो आई हैड नॉट स्पोकन टू हिम लास्ट ईयर, मैंने उससे पिछले साल नहीं बात की थी। आई हैड नॉट स्पोकन टू हिम लास्ट ईयर या आई हैडंट स्पोकन टू हिम लास्ट ईयर, ये भी ठीक है। और अगर प्रश्न बनाना हो तो हैड यू सीन हिम, हैड यू सीन हिम, राइट, हैड यू सीन हिम, राइट। सो इस प्रकार से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। Sir, हाँ बताइए। before and after वाला sentence कौन से tense में आएंगे? हाँ वो इसी में थे। जो आपने यहाँ पे देखे थे, हमने जब प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस देखा था उसमें। तो आई वॉज टॉकिंग ऑन फोन बिफोर शी केम। आई वॉज टॉकिंग ऑन फोन बिफोर शी केम, उसके आने के पहले मैं फोन पे बात कर रहा था। पास्ट कंटिन्यूस याद है आपको? राइट Yes, yes. या ओके। और आफ्टर भी होगा जब पास्ट कंटिन्यूस चलेगा। So after he left, so we were talking on phone after he left. We were talking on phone after he left. So उसके जाने के बाद हम फोन पे बात कर रहे थे। राइट क्लियर है? राइट ओके आगे हम बढ़ते हैं। सो अब हम आ चुके हैं पास्ट पर, अब हम सिंपल फ्यूचर पे आ चुके हैं। सिंपल फ्यूचर का बहुत आसान काम है। क्या करना है आपको? एक कौन सा शब्द है जो सब जगह लगा देना है आपको? विल। साक्षी यही बोलना चाह रहे हो आप भी? विल। Yes, sir. हाँ बस विल लगाओ, WILL, और आपका काम हो जाएगा आसान। ओके सो हमें क्या करना है? विल लगाना है और हमारा काम बन जाएगा आसान। सो हमको बोलना है चलिए, तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब, जो भी आपका वर्ब है ना, इन्फिनेटिव फॉर्म। ओके मैं खाऊंगा या मैं खाऊंगी, बताइए दीप्ति। मैं खाऊंगी, आई विल ईट। ओके मानसी, मैं नहीं जाऊंगी, I will not go. वेरी गुड, आई विल नॉट गो। चलिए म्यूट करते करते उससे पहले आपने गो बोल दिया तो मुझे गो ही सुनाई दिया। आई विल नॉट गो, राइट। और एक और देख लेते हैं हम। सरिता, हम नहीं बोलेंगे।
सरिता हम नहीं बोलेंगे. We will not speak. We will not speak. आप सभी को बता देता हूं कि जब हम नेगेटिव बनाते हैं ना, will और not, किसी को पता है will और not का मिश्रण क्या बनता है? Anyone? Anyone? Pranjal, what does will plus not become? Anyone? बोलिए won't. Repeat and say won't. हाँ, तो आप will not बोल सकते हैं, अन्यथा won't बोल सकते हैं, right? Yeah, won't. So I will not come. मैं नहीं आऊंगा. I won't come. Won't. Right? She will not speak. She won't speak. They will not go. They won't go. So will not same ही चलेगा सब जगह. तो उसका will not के बजाय आप क्या ध्वनि दे सकते हैं? Everyone unmute yourself and say won't. Right. So इस प्रकार से हम जो है फ्यूचर के अंदर बना सकते हैं won't के साथ. Okay. तुम मेरी सहायता नहीं करोगे? तुम मेरी सहायता नहीं करोगे? अरबाज बताइए, तुम मेरी सहायता नहीं करोगे फ्यूचर में? You will not help me. या यू विल नॉट हेल्प मी. ठीक है, ये यू देखिए, यू विल नॉट हेल्प मी में टोन लेना पड़ेगा, है ना? तो ये गलत नहीं कहूंगा मैं कि ये वाक्य गलत है, इसमें टोन ले. यू विल नॉट हेल्प मी, यू विल नॉट हेल्प मी, लेकिन अब इसमें विल पहले स्थान पे लगाओ. क्या बोलोगे? Will not help me. वेरी गुड. विल यू नॉट हेल्प मी. और कोई वोंट के साथ बना सकता है? Won't you help me? Very good. Won't you help me? हाँ, won't you help me? Won't you help me? Perfect. Clear है सभी को? Won't you help me? Yes. Perfect. चलिए. Yes, sir. तो या आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही. दीप्ति, क्या कह रहे हैं आप? he, she, it, they, we, इन सबके साथ will आएगा. हाँ, सबके साथ will आएगा. लाइफ बहुत आसान है. एक बार आप म्यूट कर लीजिए, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, आपको रिस्पॉन्स दे देता हूँ. सो इसमें क्या रहेगा दीप्ति? विल पॉजिटिव में भी, विल नॉट नेगेटिव में भी, सब में सेम रहेगा. आई विल नॉट स्पीक, यू विल नॉट स्पीक, शी विल नॉट स्पीक, ही विल नॉट स्पीक, एकदम सेम रहेगा. और विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन आप कर सकते हो दीप्ति, और वोंट बना सकते हो. आई वोंट स्पीक, यू वोंट स्पीक, शी वोंट स्पीक, ही वोंट स्पीक, दे वोंट स्पीक, वी वोंट स्पीक. तो वो सेम रहेगा. ठीक है? क्लियर है यहां तक? तो आज हमने सारे टेंसेस देख लिए हैं आपके लिए, और आई एम श्योर अब आपको समझ में आ गया होगा इनको कैसे काम में लेना है. अब सिर्फ इसकी ज्ञान की जो हमारी पुस्तिका है, उसको सिर्फ किताब मात्र तक उसको लिखते रहने से काम नहीं चलेगा, इसको हमें काम में लेना है. So from tomorrow onwards, we are going to speak in English. Are you all up for it? Are you all ready for it? Yes, sir. I want a loud yes from everyone. Are you all up for it? Yes? Okay, great. Yes, sir. So I think you all are okay that we should work on our spoken part as well. In a way, अभी तक हम spoken कर तो रहे थे, पर हम सिर्फ उसको दुरुस्त कर रहे थे कि इसको कैसे बोलते हैं, उसको कैसे बोलते हैं. अब ऐसे वैसे बोलते तो हैं, पर उसको काम में कैसे लेते हैं वो हम कल से चालू करते हैं. तो हमारा कल का टॉपिक है, क्या टॉपिक बताया था मैंने आप लोगों को इंग्लिश में? क्या टॉपिक है कल का? बताइए क्या है टॉपिक? स्पीकिंग बोलना. हाँ, सर आपने बोला था इंग्लिश बोलना. Why are you learn to English? Why are you learn to English? Why do you learn English? Why are you learning English? तो हमारा कल का जो टॉपिक है एवरीवन, इस पे मेहनत करके आइएगा. हालांकि ऑल्दो मैं आप लोगों को कंटेंट दे दूंगा, बट उस कंटेंट से आप इंस्पायर होइएगा, लेकिन अपना भी कंटेंट रेडी कीजिएगा. और टॉपिक है Why do we need to learn English? Right? Why do we need to learn English? हमें अंग्रेजी क्यों सीखनी है? क्या रीजन है? सिर्फ आपका व्यक्तिगत रीजन नहीं, बट इन जनरल. राइट? इस पे खूब सारी चर्चा करेंगे. आधे घंटे, 40 मिनट, 45 मिनट खूब बातचीत करेंगे. सब बातचीत करने के लिए रेडी रहना, कोई घबराना नहीं है, आपको बिंदास होकर बोलना है. अनम्यूट तो करना ही है बोलने के लिए, लेकिन साथ में अपने कैमरे को भी ऑन करना है. ध्यान रखिएगा. ठीक है? एवरीवन, यू आर ओके विद दैट? Yes, sir. अब Yes, sir. अब कल से लेके आखिरी तक हम यही करेंगे. हम एक टॉपिक उठाएंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे 40 मिनट 45 मिनट, और एक छोटा सा टॉपिक ग्रामर का हमेशा आगे रखूंगा, ताकि थोड़ा बहुत हम ग्रामेटिकल वे में भी आगे बढ़े. चलिए,
So with that, do you have any questions? Any questions, anyone? No, sir. No? Great. So with that, we have come to the end of our today's session. I wish you all a great evening. See you tomorrow with a lot of discussion in the session. Thank you. Take care. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, Yeah, Printer. you too. Thank you. Have a great evening, everyone.